Dear student, it is my last lecture of matrix. In this lecture, I am giving you another method of finding the inverse of any matrix by splitting rows or columns, and will get the inverse of matrix. You read and learn how you calculate the inverse of matrix without the adjoint of matrix. ओके डियर स्टूडेंट, इनवर्स निकालने के लिए हमने अभी आपको एडजॉइंट की मदद से इनवर्स निकालना बताया, जिसमें डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं। बिना एडजॉइंट के और बिना डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन के भी हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। इसके लिए आप, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो इस कंसेप्ट से और रो और कॉलम के ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम ये इनवर्स निकाल सकते हैं। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके आपको बताते हैं। जैसे आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ये कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ इनवर्स it does not affect if we multiply identity matrix of any matrix. Our given matrix is 1 -1 2 3, and we take identity matrix 1 0 0 1 of order 2 Same here. First we applying rows R2 minus 2 R1, just like your determinant. What effect of this? When R1 is multiplied by 2, it becomes 2, and 2 minus 2 is 0. First rows is same, 2 minus 2 is 0, and this become minus 2 and 3, or minus plus, so 3 plus 2 5. Here this matrix is also changed. If we multiply by 2, so this will become 2. First row is as it is, so 0 minus 2 is minus 2. Doesn't affect by multiplying by 0 anything, so it is 1, and this is A. Our aim to this matrix convert as a identity matrix. Again 5 is problem, so applying R2 is equal to 1 upon 5 R2. 5 is divisible by 5, it becomes 1. So 1 minus 1, and it is divisible by 5. 5 upon 5 is 1. But here this becomes 0, 1 0 minus 2 upon 5 and 1 upon 5. Again we applying R1 is equal to R1 plus R2. Here we applying R1 plus R2. R1 को R2 से रिप्लेस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रोज 1 plus 0 is 1, and minus 1 plus 1 it becomes 0, and already this matrix become of identity matrix of order 2. Here also we change, and 1 plus 1 minus 2 upon 5,
LCM is 5. 5 minus 2, it becomes 3 upon 5. So first rows become 3 upon 5, and 0 minus 1 upon 5 is 1 upon 5 because it is plus, and this matrix is 1 upon 5, it minus 2 upon 5 and 1 upon 5 A. It shows inverse of matrix is, it shows inverse, then it shows inverse of matrix A is 3 upon 5, 1 upon 5, minus 2 upon 5 and 1 upon 5. In this way we find the inverse of matrix by splitting rows. Now see a 3 orders problem of matrix in this method. Here we have a problem to find out the inverse of matrix 2, 0, minus 1, 5, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, and this is A. Our aim to find this matrix the same way, A identity matrix. This is मैट्रिक्स जिसका हमको इन्वर्स निकालना है, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया. अब कुछ रोज एंड कॉलम्स के ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. पहले हमने क्या किया कि R1 को R2 की जगह रख दिया और R2 को R1 की जगह. तो ऑपरेटिंग R1 in place of R1 R2 and place of R2 R1. Simplify. This will become 5 1 0. R2 is here and R1 is place of R2. Minus 1 0 1 3. Same operation is also took place here. 1 0 0 0 0 1 into A. Only here we change the rows R2 in place of R1 and R1 in place of R2. Next step ऑपरेटिंग. दूसरी स्टेप में हमने क्या किया, R1 को रिप्लेस कर दिया R1 माइनस 2 R2. तो इसका फायदा ही होगा ना, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है. तो ये आपका हो गया 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया. तो ये आपका हो गया 5 माइनस 4 इज 1 एंड 1 माइनस 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे बस सेम रहेगा. तो 1 माइनस 0 इज 0 और ये आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2. तो 0 माइनस माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा. तो ये हो गया 2, ये हो गया 2. अब और में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो ये हो गया 0 1 0 0 1 3. अब यही चेंज आपका इस साइड भी होगा. अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू 1 2 और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस 2 और यहाँ 0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो 0 1 0 0 0 0 1 और ये आपका हो गया ए. अब थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग, क्योंकि यहाँ हमको 0 लाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ऑपरेटिंग R2 रोज को हम चेंज कर देंगे R2 माइनस 2 R1. अब देखिए 2 से R1 का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2 माइनस 2 इज 0. फर्स्ट रोज में हमने कोई चेंज अभी किया नहीं, तो ये हो गया 1 1 2. अब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, 2 माइनस 2 0
और ये 2 से हो गया, तो यहाँ आपका हो गया, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये -2 हो गया। 2 1 जा 2 और सब्ट्रैक्ट करें तो -2 हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये ऑलरेडी आपका माइनस है, यहाँ आपका ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस था ना, तो माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 5, ये आपका हो गया -5, ये हो गया -5। नीचे आपने कोई चेंज अभी किया नहीं है, तो 0 1 2 3। अब यही चेंज आपका पूरे में होगा ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो ये हो गया -4, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्स्ट में तो कोई चेंज किया नहीं है, तो ये -2 1 0, ये आपका हो गया 5। 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 हुआ, और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करें तो 5 हो गया। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 जा 2, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, ये हो गया -2 एंड 0। नीचे कोई चेंज किया नहीं है, तो ये हो गया इंटू ए। अब आगे की स्टेप में हम क्या करेंगे कि आगे की स्टेप में ऑपरेटिंग R2 को निगेटिव बना देंगे, पूरे R2 को निगेटिव बना देंगे। ये आपका R2 है, तो इसको निगेटिव बना लेंगे, तो यहाँ भी ये सारे निगेटिव हो जाएंगे। देखिए, तो ये आपका हो गया 1 1 2 और 0। अब ये -2 था, तो ये हो जाएगा +2, और ये -5 था, तो ये हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा 0 1 3। क्योंकि आपका RS साइड में भी यही चेंज होगा, तो बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये 5 था आपका, तो 5 का -5, ये प्लस हो जाएगा +2, तो ये हो गया -5 +2 0 0 0 1 इंटू ए। अभी देखिए काफ़ी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में रह गई हैं। तो अब क्या करेंगे हम, ऑपरेटिंग R2 माइनस R3। देखिए 2 -1 1 हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब 0 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। तो ये आपका चेंज हम करेंगे। फर्स्ट रोज में कोई चेंज नहीं किया है, सेकेंड में किया है, तो ये R2 माइनस R3, R2 सेकेंड रोज को थर्ड रोज से सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 2 - 1 यहाँ आपका 1 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, और में तो कोई चेंज किया नहीं अभी, तो ये आपका हो गया दिस। अब यही स्टेप यहाँ भी आएगी, यहाँ आपका आ गया, और ये -2 था, -2, तो यहाँ से देखिए -2 1 0 था, इसमें कोई चेंज किया नहीं था, R2 में ही चेंज किया था, तो -2 1 0, और ये 5 हो गया था नेगेटिव। अब R2 को यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, R2 को R3 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ तो 0 है, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो यह आपका हो जाएगा -5 का -5 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन जब इसको -0 -1, ये -1 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 0 0 1 A। अब जो है, अभी देखिए ये 1 हो गया, अब ये सब 0 ये लाना है, तो इसके लिए हम क्या चेंज करेंगे, 2 ऑपरेशन एक ही साथ कर लेते हैं। ऑपरेटिंग R1 को हम चेंज कर देंगे R1 माइनस R2, R1 को R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, और R2 को यहाँ 0 हो जाएगा। अब हम R2 में चेंज करेंगे
R3 में R3 को चेंज कर देंगे R3 माइनस R2, R3 को में चेंज कर देंगे R3 माइनस R2, मतलब थर्ड रोज को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए अब ये ऑपरेशन एक साथ करते हैं। पहले हमने किया R1 को फर्स्ट रोज को R2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये आपका हो गया फर्स्ट रोज को 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, और यहाँ R2 में कोई चेंज किया नहीं है तो 0 1 2। अब हमने थर्ड में R3 को R2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा 0 एंड 1 माइनस 1 0 एंड 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1। देखिए बस अब ये इस 2 को 0 बनाना रह गया है। पहले यहाँ भी वही ऑपरेशन कर लें, तो -2 और माइनस में से ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 3। यहाँ आपका इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 और 1 0, और ये क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया +1। सेकेंड में हमने कोई चेंज किया नहीं है, तो सेकेंड वही हो जाएगा 5 2 माइनस 1। अब R3 को R2 से किया है, तो 0 0 माइनस 5, और ये माइनस कर रहे हैं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और ये 0 माइनस 2, R3 माइनस R2 कर रहे हैं इसलिए ना 1, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 इंटू A। अब आपका प्रॉब्लम आइडेंटिटी बनने में केवल 2 है, तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, ऑपरेटिंग R2 को थर्ड रोज को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, थर्ड रोज को, तो ये 2 हो जाएगा, तो इससे 0 हो जाएगा बस। तो ये आपका हो गया 1 0 0। अब R2 से तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 से हुआ तो 2 2 माइनस 2 0। देखिए अब ये परफेक्टली 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब ये ऑपरेशन यहाँ तो कोई चेंज किया नहीं है, तो 3 माइनस 1 1। R2 में चेंज किया, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, R3 5 10 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया ये 10 है, -5 ये हो गया 10, तो ये आपका हो जाएगा 15। 5 और -5, और ये -2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -10, तो ये आपका हो गया -15। ठीक है, अब ये 2 से हो गया तो 2 2 जा 4, और माइनस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 6। ये 2 से हो गया तो ये आपका हो गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 4 यहाँ माइनस ही है, तो -4 और -1, ये हो गया -5, ये हो गया -5, और तो कोई चेंज किया नहीं है, तो ये हो गया 5 -2 एंड 2 इंटू A। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, और कैलकुलेशन चेक करने का तो बस वही तरीका है कि आप A इनवर्स निकाल लें, तो ये आपका हो गया। सो इनवर्स ऑफ A इज 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। इस तरह हम इनवर्स निकाल सकते हैं।
अब इसका चेक यही है कि ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने जो इनवर्स निकाला है वो आपका सही है कि नहीं। 5 -2 2। अब ओरिजिनल मैट्रिक्स आपकी थी जिसका आप इनवर्स निकाल रहे थे, उसको लेकर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमने निकाला है वो इनवर्स सही है कि नहीं। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी आपकी 2 0 -1 5 1 0। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, इसको चेक कर लीजिए। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए, तब तो आपका इनवर्स सही है अथवा नहीं है। तो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए आप कर लेंगे। तो 3 × 2 -1 × 5 and 1 × 0। अब फर्स्ट को थर्ड से 3 × 0 -1 × 1 और 1 + 1 × 1। थर्ड रेट को 3 × -1 3 × -1 प्लस -1 × 0 और +3। आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप तो उसी तरह बनती जा रही है। -15 × 2 -15 × 2 6 × 5 प्लस 6 × 5 -5 × 0 और -15 × 0 6 × 1 and -5 × 1 -15 × -1 और 6 × 0 -15 × 0 6 × 1 6 × 1 and 5 × 1। यहाँ का है 5 × 1। तो इस तरह मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर सकते हैं। सेकेंड रोज का -15 × 2 6 × 5 and -5 × 0 -15 × 0 6 × 1 and -5 × 1। यहाँ करेंगे तो 5 -15 × 1 and 6 × 0 and -15 6 × 0 and -15 × 3। Last step 5 × 2 5 × 2 and -2 × 5 plus 0 -5 × 0 -2 × 1 plus 2 × 1 और 5 × -0 और 3 × 6 3 × 6। अब इसको सिंप्लाई 3 2 जा 6 6 × 5 it is 1 and 3 1 0 0 and this is 0 this is 0 6 × 1 and this is 0 1 0 0 0 1। Now it become identity matrix of order 3. In this way this is the inverse of matrix this। तो इस वे भी हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अगर मेंशन है प्रॉब्लम में कि आप एडजॉइंट से निकालिए तो यू मस्ट कैलकुलेट फ्रॉम एडजॉइंट, नहीं तो स्प्लिटिंग टर्म से दिया है तो स्प्लिटिंग टर्म से कर सकते हैं। तो इस तरह आपका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इन्वर्स निकालने का ये लास्ट लेक्चर भी हो गया और इन्वर्स निकालने का एक नया मेथड हो गया। तो ये आपका 8वां लेक्चर जो है इन्वर्स हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।